নমস্কাৰ, মই আব্দুল কালাম। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো এক ডাঙৰ খবৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু এইবাৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছে। কিৰণ ৰিজিজু ২৭ বছৰীয়া যুৱকৰ সৈতে ধাৰাসায়িক হ'ব। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু, মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। টিচি ৰাণা ২৭ বছৰীয়া যুৱক আৰু শিক্ষা বিভাগক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে আৰু তীব্ৰ আন্দোলনৰ পিছতে বিজেপিৰ ৰুখত পৰিছিলে টিচি ৰাণা। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত টিচি ৰাণা অৱতীৰ্ণ হৈছে ৱেষ্ট অৰুণাচলৰ পৰা। ৱেষ্ট অৰুণাচলত এইবাৰ ধাৰাসায়িক হ'ব কিৰণ ৰিজিজু। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিকবিদ হৈছে কিৰণ ৰিজিজু, আৰু এই কিৰণ ৰিজিজুক এইবাৰ ধাৰাসায়িক কৰিব টিচি ৰাণাই এইবাৰ ধাৰাসায়িক কৰিব বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুক। আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে ২৭ বছৰীয়া, আপোনালোকে যিজন যুৱকক আপোনালোকে দেখি আছে, এই যুৱকজন হৈছে ২৭ বছৰীয়া। মাত্ৰ ২৭ বছৰতে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত শিক্ষা বিভাগত যি ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিলে, বিজেপি চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত কৰিছিলে ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি, আৰু সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰিছিলে টিচি ৰাণা। জঁপিয়াই পৰাৰ পিছত টিচি ৰাণাৰ লগত যিসকল যুৱক আছিলে, এই যুৱকসকলক জেলত দিয়া হৈছিলে আৰু বিজেপি জেলত দিছিলে এই যুৱকসকলক। আৰু শেহতীয়াভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যুঁজ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে টিচি ৰাণাৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইতিহাসত, হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত ২৭ বছৰীয়া যুৱকে অৱতীৰ্ণ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত, আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ ১০০% জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে টিচি ৰাণাই। ১০০% জয়ী হ'ব। আচলতে শিক্ষা বিভাগৰ যি ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি আছিলে, সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলে টিচি ৰাণাই। আৰু টিচি ৰাণাৰ সৈতে আছে যুৱক, টিচি ৰাণাৰ সৈতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একাংশ লোক আগবাঢ়ি আহিছে টিচি ৰাণাই। আচলতে আপোনালোকক আৰু এটি দৃশ্য দেখুৱাই আছো যে এয়া হৈছে ডনেশ্যন বক্স। আচলতে এই ডনেশ্যন বক্স তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে, ঠায়ে ঠায়ে ডনেশ্যন বক্স তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে। ৰাইজৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰ্থিক সাহায্য গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম আছে, এই উন্নয়নমূলক কামসমূহ তেওঁ সমাধান কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। मेरा नाम टेची राणा है और मैं अरुणाचल वेस्ट जो पार्लियामेंट्री सेक्शन है कंस्टिट्यूंसी, यहाँ से एमपी के चुनाव के लिए मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हूँ। मेरे चुनाव का जो सिंबल है, जो चयन है, वो है टेलीविजन, जो टीवी है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा इलेक्शन का सिंबल है। अभी आता हूँ जो आपके सवाल पे, आपने पूछा कि ऐसे क्या मजबूरी हो गया होगा कि इस इतने से उम्र में, 28 वर्ष की उम्र में मैं जो इलेक्शन में आके किरण रिजिजू जैसे जो हमारा एक यूनियन मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट खड़ा होने के जो मुझे नौबत आ गया। तो बताना चाहता हूँ कि सारे आपके व्यूअर्स को और पूरा अरुणाचल की जनता और असम की जनता को भी कि अरुणाचल में पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे ऐसे मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है जो हर एक घर से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे जब मुद्दा को जब आप इशू रिजोल्व नहीं करते, और यहाँ जो हम जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके जो पार्लियामेंट में भेजते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो स्टेट में इशू चल रहा है वो स्टेट का इशू है। मैं सेंट्रल का हूँ, मैं सेंटर के, तो मैं स्टेट के इशू की बात ही नहीं कर सकता। तो समय आ गया कि इस जो सेंट्रल मिनिस्टर को पूछने के लिए, कल को जब इलेक्शन होता है तो आपको वोट कौन देता है, क्योंकि आप अगर आप ये कहते हैं कि जो स्टेट इशू को मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो आपको वोट भी शायद से स्टेट का, यहाँ का जो राज्य का आदमी जो है वो देना नहीं चाहिए। और ऐसे ही मैं जो जिस इशू को मैं लेके आया हूँ, पूरा अरुणाचल के युवा इस चीज से पिछले 2 साल से बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द, बहुत इमोशनल हो गया कि यहाँ में जो APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम है, जो यहाँ का सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे असम में होता है असम पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछले 2 सालों से यहाँ घोटाला के ऊपर में एक बहुत मुहिम छेड़ के रखा है, जिसमें काला बाजार जैसे मछली बाजार बना के रखा था। क्वेश्चन पेपर को यहाँ बेच के नौकरियां दिया जा रहा है। तो मैं भी एक एस्पायरेंट था, उस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो हमने कोशिश किया कि अपनी कैपेसिटी में जितना हो सके हम लोगों ने इसमें बहुत सारा धरना किया, प्रोटेस्ट किया, रैली किया, यहाँ तक पब्लिक वॉलंटियर्स भी हुआ। और यहाँ तक कि जो पेपर चोर को पकड़ने के लिए हम लोग बोला इनके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। पेपर चोर के ऊपर में एक्शन नहीं लेके हमारे ऊपर में हमारे एस्पायरेंट्स लोग को है, बहुत सारा लोग को जेल में डाला गया। क्या प्लान होगा अगर आप ये जो इलेक्शन है, अगर आप जीत लिया तो क्या प्लान होगा?
जैसे अभी थोड़ा पहले भी मैंने बताया है, ये जो APPSC का जो पेपर लीकेज स्कैम है, ये बहुत सारे जो इश्यूज है यहाँ का जो समस्या है उनमें से कोई एक छोटा सा समस्या है। इसको अगर गवर्नमेंट रिजोल्व नहीं कर पाए तो ये गवर्नमेंट किस काम का है ना। तो वैसे ही अरुणाचल में बहुत सारे और भी इश्यूज है जो ऑलरेडी पुराना इश्यूज है, इसमें कोई नया इश्यूज का भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे जो है कोई भी सरकार जो है जो मंत्रिमंडल में है इन लोगों का तरफ से कोई भी एक ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि इस इश्यूज में परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो इश्यूज है उसके ऊपर जब भी इसके ऊपर कुछ घटना गतिविधि होता है तो छोटा सा एक स्टेटमेंट देके सबको रफा दफा कर देते हैं। जैसे मैं बता दूं कि एक एग्जांपल है, हमारा जो अरुणाचल में है यहाँ रेफ्यूजी का इशू है। रेफ्यूजी का इशू आप लोगों को पता है कि आए दिन ये बहुत प्रॉब्लम्स में आते रहते हैं, लेकिन इस चीज को रिजोल्व नहीं करके बस इस चीज को पब्लिक में दिलासा देने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट निकाल के इनको डिपोर्टेशन कर देंगे बोल के रफा दफा कर देते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूरा जनता को पता है कि इसका एक्चुअल सोल्यूशन डिपोर्टेशन में नहीं डिपोर्टेशन में इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसको एक सही एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने में है। वैसे ही यहाँ में और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसको ये जो हमारा जो MP है, हमारा जो यहाँ का गवर्नमेंट है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स है, इन उसको बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अरुणाचल को युवा को लगता है कि ये बदलाव आना जरूरी है। तो बदलाव आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो गंभीर मुद्दा लोग है इसको घर घर पे जाके इसको बताया जाएगा। अगर इसके लिए अगर इस चीज को पार्लियामेंट के फ्लोर में भी बात करना हो तो इसको जोरदार से इसका जो विवाद है इसको लेके आगे जाना पड़ेगा। और जो है नेशनल जो अटेंशन है, जो नेशनल मीडिया का कवरेज अटेंशन है, तो उसको वहाँ हाईलाइट किया जाएगा। पता चलना चाहिए कि पूरा देश में कि अरुणाचल एक ऐसा एक राज्य है जो पूर्वोत्तर में है, वहाँ जाके यहाँ का जनता जो है इस गवर्नमेंट से नाखुश है बोल के। अब पार्टी से क्यों नहीं आया, इंडिपेंडेंस आ गया? जी, ये जो मैं इंडिपेंडेंस से आने का जो मेरा जो डिसीजन है, मेरा निर्णय है, ये बहुत सोची समझी एक डिसीजन है। क्योंकि यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स में जो करने वाला है, यहाँ के जो दिग्गज नेता लोग हैं, जैसे कि हमारा कांग्रेस है हो गया, BJP हो गया और अन्य पार्टी जो भी है, यहाँ में जो आदमी यहाँ से इलेक्ट होकर जो मंत्री वहां जाके अपना नेता बन के जो बैठा हुआ है, इन लोग का अंदर उतना सक्षम नहीं है कि ये लोग जो है आपका इश्यूज को है, आपका जो प्रॉब्लम्स को खुल के बात कर सकने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का जो वो ऑब्लिगेशंस होता है, पार्टी के लाइन में एग्रेंस्ट में बोलने से शायद से उनको कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये शायद से उनका रुकावट है। तो हमें लगता है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते आप जो है बिना डरे, बिना किसी ऑब्लिगेशंस में रह के ये सब इशू को आप बढ़ चढ़ के अपने पूरे तरीके से खोल के बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ के डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा।